Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 18 of industrial pharmacy. In this lecture, we will continue our discussion on the topic of granulation. In previous class, we had left our discussion on the granulation mechanisms. Uh, Granulation mechanisms are divided into two steps: particle bonding mechanisms and mechanism of granule formation. We will be discussing each of these mechanisms in detail. So let's first start with the particle bonding mechanisms. To form granules, bond must be formed between powder particles so that they adhere, and these bonds must be sufficiently strong to prevent breakdown of the granules to powder in subsequent handling operations. The five primary bonding mechanisms between the particles are adhesion and cohesion forces in the immobile liquid films between individual primary powder particles, interfacial forces in mobile liquid films within the granules, the formation of solid bridges after solvent evaporation, and attractive forces between solid particles, and the last one is mechanical interlocking. Many of different types of mechanisms have been identified within these categories. The one discussed next are those which are most relevant to pharmaceutical granulation. ग्रैन्यूल्स फॉर्म करने के लिए बॉन्ड्स फॉर्म होने चाहिए बिटवीन पाउडर पार्टिकल्स, और ये अडेयर रहने चाहिए. बॉन्ड्स इतने सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग हों कि वो ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कर सकें ग्रैन्यूल की टू पाउडर्स हैंडलिंग ऑपरेशंस के दौरान. 5 प्राइमरी बॉन्डिंग मैकेनिज्म्स हैं पार्टिकल्स के, जिसमें से एडिशन और कोहेजन फोर्सेस हैं. इमोबाइल लिक्विड फिल्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिविजुअल प्राइमरी पाउडर पार्टिकल्स. सेकेंड वन इज इंटरफेशियल फोर्सेस इन मोबाइल लिक्विड फिल्म्स विद इन द ग्रैन्यूल्स. The third is the formation of solid bridges after solvent evaporation, and fourth is attractive forces between solid particles and mechanical interlocking. डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज़म्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं इन कैटेगरीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वो मैकेनिज़म्स जो कि रेलेवेंट हैं फार्मास्यूटिकल ग्रैनुलेशन के साथ. So the first one is adhesion and cohesion forces in immobile films. If sufficient liquid is present in a powder to form a very thin immobile layer, there will be an effective decrease in the interparticulate distance and an increase in contact area between the particles. The bond strength between the particles will be increased because of this, as the van der Waals forces of attraction are proportional to the particle diameter and inversely proportional to the square of the distance of the separation. This situation will arise with adsorbed moisture and accounts for the cohesion of slightly damp powders. Although such films may be present as residual liquid after granules prepared by wet granulation and have been dried, it is unlikely that they contribute significantly to the final granule strength. In dry granulation, however, the pressure used will increase the contact area between the adsorbed layers and decrease the interparticulate distance, and this will contribute to the final granule strength. Thin immobile layers may also be formed by highly viscous solutions of adhesives. The resulting bond strength will be greater than that produced by the mobile films discussed next. The use of starch mucilage in pharmaceutical granulations may produce this type of film. सफिशेंट लिक्विड अगर प्रेजेंट होता है पाउडर्स में तो एक थिन इमोबाइल लेयर प्रेजेंट करता है या फॉर्म करता है, जो कि इफ़ेक्टिवली डिक्रीज़ करती है इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस को और इंक्रीज़ करती है कॉन्टेक्ट एरिया को बिटवीन द पार्टिकल्स. बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीज़ होगी वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से. वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल होते हैं पार्टिकल डायमीटर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स. ये सिचुएशन अगर अराइज करती है एड्जॉर्ब्ड मॉइस्चर में
और अकाउंट करती है कोहेजन में स्लाइट डैम्प पाउडर्स के। ऐसी फिल्म्स अगर प्रेजेंट होती हैं एज ए रेजिडुअल लिक्विड जब ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं वेट ग्रैनुलेशन से और उन्हें ड्राई किया जाता है, तो ये अनलाइकली होता है कि वो कंट्रीब्यूट करें सिग्निफिकेंटली टू फाइनल ग्रैन्यूल स्ट्रेंथ। ड्राई ग्रैनुलेशन के अंदर प्रेशर को यूज़ किया जाता है ताकि कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज किया जा सके बिटवीन दी एब्जॉर्ब्ड लेयर्स और इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस को कम किया जा सके। ये कंट्रीब्यूट करेगा फाइनल ग्रैन्यूल स्ट्रेंथ में। थिन इमोबाइल लेयर्स फॉर्म होती हैं हाईली विस्कस सॉल्यूशंस जो एडहेसिव्स के होते हैं उनकी वजह से। रिजल्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होती है जो कि मोबाइल फिल्म्स की वजह से प्रोड्यूस की जाती है। Interfacial forces in mobile liquid films. During wet granulation, liquid is added to the powder mix and will be distributed as a film around and between the particles. Sufficient liquid is usually added to exceed that necessary for an immobile layer, and this produces a mobile film. 3 states of water distribution between particles are illustrated over here. At low moisture level, termed as the pendular state, the particles are held together by lens-shaped rings of liquid. These cause adhesion because of the surface tension forces of the liquid air interface and the hydrostatic suction pressure in the liquid bridge. When all the air has been displaced between the particles, the capillary state is reached, and the particles are held by capillary suction at the liquid air interface, which is now only at the granule surface. The funicular state represents an intermediate stage between the pendular and capillary states. Moist granule tensile strength increases by approximately 3 times from the pendular state to the capillary state. It may appear that the state of the powder bed is dependent upon the total moisture content of the wetted powder, but the capillary state may also be reached by decreasing the separation of the particles. In the massing process during wet granulation, continued kneading mixing of material originally in the pendular state will densify the wet mass, decreasing the pore volume occupied by air and eventually producing the funicular or capillary state without further liquid addition. वेट ग्रैनुलेशन के दौरान लिक्विड ऐड किया जाता है पाउडर मिक्स में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ फिल्म अराउंड और बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर सफिशिएंट लिक्विड ऐड किया जाए और वो एक्सीड कर जाए देन दैट नेसेसरी फॉर एन इमोबाइल लेयर, तो ये एक मोबाइल फिल्म फॉर्म करता है। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती हैं, पेंडुलर, फ्यूनिकुलर और कैपिलरी, जो यहाँ पर शोन है। लो मॉइस्चर लेवल के ऊपर पेंडुलर स्टेट एग्जिस्ट करती है जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं बाय लेंस शेप्ड रिंग्स ऑफ लिक्विड। ये कॉज करता है एडिशन को बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्सेस ऑफ द लिक्विड एयर इंटरफेस और हाइड्रोस्टैटिक सक्शन प्रेशर की वजह से जो लिक्विड ब्रिज के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब सारी एयर डिस्प्लेस हो जाती है फ्रॉम द पार्टिकल्स, ये जो एयर स्पेसेस हैं ये तमाम की तमाम जब डिस्प्लेस हो जाती हैं तो कैपिलरी स्टेट रीच होती है और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं बाय कैपिलरी सक्शन के साथ और लिक्विड एयर इंटरफेस के ऊपर। ये एक्चुअली ग्रैन्यूल सरफेस है। फ्यूनिकुलर स्टेट रिप्रेजेंट करती है एक इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन पेंडुलर एंड कैपिलरी स्टेट। मॉइस्ट ग्रैन्यूल टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बाय अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स पेंडुलर स्टेट से कैपिलरी स्टेट तक। स्टेट ऑफ पाउडर बेड डिपेंड करती है टोटल मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर वेटेड पाउडर्स के, लेकिन कैपिलरी स्टेट उस वक्त रीच होती है जब
सेपरेशन पार्टिकल्स की डिक्रीज हो जाती है। मासिंग प्रोसेस के अंदर वेट ग्रैनुलेशन में नीडिंग या मिक्सिंग की जाती है मटेरियल्स की ओरिजिनली, और पेंडुलर स्टेट डेंसिफाई होती है या वेट मास को डेंसिफाई करती है, जिसकी वजह से पोर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जो कि एयर की ऑक्यूपेशन की वजह से होता है, और इवेंचुअली फेनिकुलर और कैपिलरी स्टेट फॉर्म होती हैं विदाउट फर्दर एडिशन ऑफ लिक्विड। Solid bridges. These can be formed by three methods: either partial melting, hardening binders, or crystallization of dissolved substances. Partial melting, although not considered to be a predominant mechanism in pharmaceutical materials, it is possible that the pressure used in dry granulation methods may cause melting of low melting point materials where the particles touch and high pressures are developed. When the pressure is relieved, crystallization will occur and binding the particles, which leads to the binding the particles together. Hardening binders are the common mechanisms in pharmaceutical wet granulation where an adhesive is included in the granulating solvent. The liquid will form liquid bridges and the adhesive will harden or crystallize on drying to form solid bridges to bind the particles. Adhesives such as polyvinyl pyrrolidine, cellulose derivatives, and pre-gelatinized starch functions in this way. Crystallization of dissolved substances involves the solvent used, which is used to mass the powder during wet granulation and may partially dissolve one of the powdered ingredients. When the granules are dried, crystallization of this material will occur and the dissolved substance then acts as hardening binder. Any material soluble in the granulating liquid will function in this manner. For example, lactose incorporated into powder blends granulating with water. The size of the crystal produced in the bridge will be influenced by the rate of drying of the granules. The longer the drying time, the larger the particle size of the drug crystals. It is therefore important that the drug does not dissolve in the granulating liquid and recrystallize, because it may adversely affect the dissolution rate of the drug if crystals larger than those of the drug starting material are produced. सॉलिड ब्रिजेस तीन तरह से फॉर्म हो सकते हैं: पार्शियल मेल्टिंग के थ्रू, हार्डनिंग बाइंडर्स के थ्रू, और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू डिसॉल्व सब्सटेंसेस की। पार्शियल मेल्टिंग प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म नहीं है फार्मास्यूटिकल मटेरियल में, लेकिन ये पॉसिबल है जहाँ पर प्रेशर यूज़ किया जाता है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड में। प्रेशर की वजह से मेल्टिंग होती है लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स की, सरफेस मेल्टिंग होती है जहाँ पर पार्टिकल्स टच होते हैं और हाई प्रेशर डेवलप होता है। जब प्रेशर रिलीव किया जाता है तो क्रिस्टलाइजेशन अकर होती है विच लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। हार्डनिंग बाइंडर्स का यूज़ एक कॉमन मैकेनिज्म है फार्मास्यूटिकल वेट ग्रैनुलेशन में, जहाँ पर हम एडेसिव यूज़ को इंक्लूड करते हैं ग्रैनुलेटिंग सॉल्वेंट में। लिक्विड विद द ग्रैनुलेटिंग सॉल्वेंट लिक्विड ब्रिजेस फॉर्म करता है और एडेसिव हार्डन का होता है, ये क्रिस्टलाइज होता है ऑन ड्राइंग, जो सॉलिड ब्रिजेस फॉर्म करता है जो कि पार्टिकल्स को बाइंड रखते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें डिफरेंट टाइप के एडहेसिव्स यूज़ होते हैं जैसे पीवीपी या सेलुलोज डेरिवेटिव्स या प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च। डिसॉल्व सब्सटेंसेस की क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है टू मास द पाउडर ड्यूरिंग वेट ग्रैनुलेशन, और इसमें सॉल्वेंट पार्शियली डिसॉल्व करता है एक या दो पाउडर इंग्रेडिएंट्स को। जब ग्रैन्यूल्स ड्राई किए जाते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन इस डिसॉल्व मटेरियल की लीड करती है सॉलिड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में। वो मटेरियल जो सॉल्यूबल होता है ग्रैनुलेटिंग लिक्विड में, वो इस मैनर के थ्रू फंक्शन करता है, जैसे कि लैक्टोज को अगर इनकॉर्पोरेट किया जाए पाउडर ब्लेंड्स में ग्रैनुलेटेड विद वाटर। क्रिस्टल का साइज जो प्रोड्यूस होता है ब्रिज के अंदर, वो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ ड्राइंग ग्रैन्यूल्स की रेट ऑफ ड्राइंग को। लॉन्गर ड्राइंग टाइम लार्जर पार्टिकल साइज बनाते हैं ड्रग क्रिस्टल्स के। इसी वजह से ड्रग को ग्रैनुलेटिंग लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व ना करवाना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ये रिक्रिस्टलाइज होती है तो एडवर्सली इफेक्ट कर
करती है डिसोल्यूशन रेट के ऊपर अगर ड्रग अपने पेरेंट स्ट्रक्चर से डिफर हो जाए आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन. Attractive forces between solid particles also leads to the bond formation. In the absence of liquids and solid bridges formed by binding agents, there are two types of attractive forces which can operate between particles in pharmaceutical systems. Electrostatic forces may be of importance in causing powder cohesion and the initial formation of agglomerates, for example, during mixing. In general, they do not contribute significantly to the final strength of the granules. Van der Waals forces, however, are approximately 4 orders of magnitude stronger than electrostatic forces and contribute significantly to the strength of the granules produced by dry granulation. The magnitude of these forces will increase as the distance between the adjacent surfaces decreases, and in dry granulation, this is achieved with the use of pressure to force the particles together. लिक्विड की एब्सेंस में सॉलिड ब्रिजेस की फॉर्मेशन बाइंडिंग एजेंट्स के साथ दो टाइप के मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है. दो तरह की दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है जो कि ऑपरेट करती हैं बिटवीन पार्टिकल्स फार्मास्यूटिकल सिस्टम में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इंपॉर्टेंट हैं पाउडर कोहेजन करवाने के लिए. इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स एग्लोमेरेट्स फॉर्म करवाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यूरिंग मिक्सिंग. जनरली ये कंट्रीब्यूट नहीं करती सिग्निफिकेंटली फाइनल स्ट्रेंथ के ऊपर ग्रैन्यूल की. वैन डर वाल्स फोर्सेस 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से और ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ड्राई ग्रैनुलेशन. मैग्नीट्यूड इन फोर्सेस का इंक्रीज होता है जैसे जैसे डिस्टेंस एडजेसेंट सरफेसेस में डिक्रीज होता है. ड्राई ग्रैनुलेशन में डिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए प्रेशर को यूज़ किया जाता है ताकि वो पार्टिकल्स को फोर्स कर सकें कि वो एक दूसरे के करीब आएं. The next mechanism of granulation is the mechanism of granule formation. In the dry methods, addition of particles occurs because of applied pressure. A compact or sheet is produced which is larger than the granule size required, and therefore the required size can be attained by milling and sieving. In wet granulation methods, liquid added to dry powders has to be distributed throughout the powder by the mechanical agitation produced in the agitator. The particles adhere to each other because of the liquid films, and further agitation or liquid addition causes more particles to adhere. The precise mechanism by which a dry powder is transformed into a bed of granules varies for each type of granulation equipment, but the mechanism discussed here serve as a useful broad generalization of the process. The proposed granulation mechanism can be divided into 3 stages: nucleation, transition and wall growth. ड्राई मेथड्स के अंदर एडिशन पार्टिकल्स की अकर होती है अप्लाइड प्रेशर की वजह से. कॉम्पैक्ट और शीट प्रोड्यूस होती है जो कि लार्जर देन ग्रैन्युलर साइज़ होती है और इसी वजह से ग्रैन्यूल्स के साइज़ को अटेन करने के लिए मिलिंग या सीविंग से साइज़ रिड्यूस किया जाता है. वेट ग्रैनुलेशन मेथड के अंदर लिक्विड को ऐड किया जाता है ड्राई पाउडर में और इस लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू आउट द पाउडर बाय मैकेनिकल एजिटेशन जो कि मोस्टली ग्रैनुलेटर में प्रोड्यूस होती है. पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एडहेयर करते हैं बिकॉज ऑफ लिक्विड फिल्म्स और फर्दर एडिशन या लिक्विड की एडिशन या एजिटेशन कॉज करती है पार्टिकल्स को मज़ीद एडहेयर करने के लिए. ड्राई पाउडर बेड ऑफ ग्रैन्यूल्स में ट्रांसफॉर्म होता है वो डिपेंड करता है ईच टाइप ऑफ ग्रैनुलेशन इक्विपमेंट और किस टाइप का मैकेनिज्म या ग्रैनुलेशन मेथड यूज़ किया जा रहा है पाउडर बेड को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए. यहाँ पर हम जो मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं उसमें ग्रैनुलेशन मैकेनिज्म को हम 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: न्यूक्लिएशन, ट्रांजिशन एंड बॉल ग्रोथ.
Nucleation में granulation starts with particle-particle contact and addition due to liquid bridges. A number of particles will join to form the pendular state, which is illustrated in previous slides. Further addition densifies the pendular bodies to form the capillary state, and these bodies act as nuclei for further granule growth. Transition nuclei can grow by two possible mechanisms. Either single particle can be added to the nuclei by pendular bridges, or two or more nuclei may combine. The combined nuclei may be reshaped by the agitation of the bed. This stage is characterized by the presence of a large number of small granules with a fairly wide size distribution. Providing that the size distribution is not excessively large, this point represents a suitable endpoint of the granules used in capsule and tablet manufacture, as relatively small granules will be produced to form a uniform tablet dye or capsule fill. Large granules may give rise to problems in small diameter dyes due to bridging across the dye and uneven fill. ग्रैनुलेशन स्टार्ट होती है पार्टिकल पार्टिकल कांटेक्ट से और एडिशन से, जो कि लिक्विड ब्रिजेस के दरमियान होता है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और पेंडुलर स्टेट अराइज होती है. फर्दर एजिटेशन डेंसिफाई करती है पेंडुलर बॉडीज़ को और कैपिलरी स्टेट आकर होती है, और ये बॉडीज़ एक न्यूक्लियाई का काम करती हैं फॉर फर्दर ग्रैन्यूल ग्रोथ. ट्रांजिशन न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं बाय टू पॉसिबल मैकेनिज्म्स. इधर सिंगल पार्टिकल्स ऐड होता है न्यूक्लियाई के ऊपर पेंडुलर ब्रिजेस के थ्रू, या फिर दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और न्यूक्लियाई ग्रोथ होती है. कंबाइन न्यूक्लियाई को रीशेप किया जाता है बाय एजिटेशन ऑफ द बेड. ये स्टेज कैरेक्टराइज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रैन्यूल्स, जिनका एक फेयरली वाइड साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. प्रोवाइडिंग द साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट एक्सेसिवली लार्ज. ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक सूटेबल एंड पॉइंट को उन ग्रैन्यूल्स के लिए जो कि कैप्सूल में या टैबलेट मैन्युफैक्चर में यूज़ होंगे, और रिलेटिवली स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं ये, क्योंकि ये यूनिफॉर्म टैबलेट डाई और कैप्सूल फिल्म के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट और कैप्सूल्स फॉर्म करते हैं. लार्ज ग्रैन्यूल्स प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं इन दो प्रोसेसेस के अंदर अपने क्योंकि स्मॉल डायमीटर डाइज में ब्रिजिंग हो सकती है अक्रॉस द डाई और अनइवन फिल हो सकता है लार्ज ग्रैन्यूल्स की वजह से. द नेक्स्ट स्टेप इज़ बॉल ग्रोथ. फर्दर ग्रैन्यूल ग्रोथ produces large spherical granules, and the mean particle size of the granulating system will increase with time. If agitation is continued, granule coalescence will continue and produce an unusable overmass system. Although this is dependent on the amount of liquid added and the properties of the material being granulated. Although ball growth produces granules which may be too large for pharmaceutical purposes, some degree of ball growth will occur in planetary mixers, and it is an essential feature of some spheronizing equipment. The four possible mechanisms of ball growth are coalescence, breakage, abrasion transfer, and layering. In coalescence, two or more granules join to form a larger granule. In breakage, granules break into fragments which adhere to other granules, forming a layer of material over the surviving granule. In abrasion transfer, agitation of the granulation or granule bed leads to accretion of the material from granules. This abraded material will adhere to other granules, increasing their size. In layering, when a second batch of powder mix is added to a bed of granules, the powder will adhere to the granules, forming a layer over the surface and thus increasing the granule size. This mechanism is only of relevance to the production of layered granules using spheronizing equipment.
There will be some degree of overlap between these stages, and it will be very difficult to identify a given stage by inspection of the granulating system. For the end product uniformity, it is desirable to finish every batch of formulation at the same stage, and this may be a major problem in pharmaceutical production. Using the slower processes such as planetary mixer, there is usually a sufficient length of time to stop the process before overmassing. With faster granulation equipment, the duration of granulation can only be used as a control parameter when the formulation is such that granule growth is slow and occurs at a fairly uniform rate. In many cases, however, the transition from a non-granulated to an overmasked system is very rapid, and monitoring equipment is necessary to stop the granulation at a predetermined point. This is known as granulation endpoint control. फर्दर ग्रैन्यूल ग्रोथ प्रोड्यूस करती है लार्ज स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स को, और मीन पार्टिकल साइज ग्रैनुलेटिंग सिस्टम का इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टाइम. एजिटेशन अगर कंटिन्यू की जाए तो ग्रैन्यूल कोएलिस करते हैं, और वो कंटिन्यू करते हैं कोएलिस करना और प्रोड्यूस करते हैं एक अनयूजेबल ओवरमास सिस्टम. ऑल्दो ये डिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर, जितनी अमाउंट ऑफ लिक्विड ऐड की जा रही है सिस्टम में, और प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की कैसी हैं जिन्हें ग्रैनुलेट किया जाता है. ऑल्दो बॉल ग्रोथ प्रोड्यूस करती है ग्रैन्यूल्स जो कि फेयरली बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस, लेकिन सम डिग्री ऑफ बॉल ग्रोथ इज़ नेसेसरी, और या ये अक्कर होती है प्लानिटरी मिक्सर्स में, और ये एसेंशियल फीचर होता है कुछ स्फेरोनाइजिंग इक्विपमेंट के अंदर. 4 मैकेनिज्म्स पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं बॉल ग्रोथ के: कोएलिसेंस, ब्रेकेज, एब्रेशन, ट्रांसफ़र एंड लेयरिंग. कोएलिसेंस के अंदर दो से ज़्यादा ग्रैन्यूल्स ज्वाइन करते हैं, एक लार्जर ग्रैन्यूल फॉर्म करते हैं. ब्रेकेज में ग्रैन्यूल्स ब्रेक होते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स जो कि एडहेयर करते हैं अदर ग्रैन्यूल्स के साथ. इस एडिशन की वजह से एक लेयर मटेरियल की फॉर्म होती है सर्वाइविंग ग्रैन्यूल के ऊपर. एब्रेशन ट्रांसफ़र में क्योंकि एजिटेशन हो रही होती है कंटिन्यूसली ग्रैन्यूल बेड में, जो कि लीड करती है एट्रीशन फोर्सेस को. मटेरियल्स जो कि ग्रैनुलेशन बेड में प्रेजेंट है उनकी एट्रीशन फोर्सेस इंक्रीज होती हैं. अब्रेडेड मटेरियल एडहेयर करता है दूसरे ग्रैन्यूल्स के साथ और साइज इंक्रीज करता है. लेयरिंग के अंदर जब एक सेकेंड बैच ऑफ पाउडर मिक्स ऐड किया जाता है ग्रैन्यूल बेड के अंदर, तो पाउडर एडहेयर करता है ग्रैन्यूल्स के ऊपर, जो कि एक लेयर फॉर्म करता है सरफेस पे ग्रैन्यूल साइज के ऊपर, और ग्रैन्यूल साइज इंक्रीज होता है. ये मैकेनिज्म सिर्फ उस वक्त रेलिवेंट है जब लेयर्ड ग्रैन्यूल्स की प्रोडक्शन की जा रही होती है यूजिंग स्फेरोनाइजिंग इक्विपमेंट. कुछ डिग्री ऑफ ओवरलैप एग्जिस्ट करता है इन स्टेजेस में, और ये डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी स्टेज ग्रैनुलेटिंग सिस्टम की चल रही है बाय इंस्पेक्शन. एंड प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी के लिए ये डिज़ायरेबल होता है कि हर बैच में जो फॉर्मुलेशन फॉर्म हो रही है वो एक सेम स्टेज के ऊपर एंड हो, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर. स्लोअर प्रोसेसेस में जहाँ पर हम प्लानिटरी मिक्सर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये यूजुअली एक सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम चाहिए होती है ताकि प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके बिफोर ओवर मासिंग. फास्टर ग्रैनुलेशन इक्विपमेंट के अंदर ड्यूरेशन ऑफ ग्रैनुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग कंट्रोल पैरामीटर, जहाँ पर फॉर्मुलेशन इस तरह से बनती हैं कि ग्रैन्यूल ग्रोथ स्लो होती है और वो अकर होती है एट फेयरली यूनिफॉर्म रेट. बहुत सारे केसेस में ट्रांजिशन नॉन ग्रैनुलेटेड से ओवरमास सिस्टम तक बहुत रैपिड होती है, और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि ग्रैनुलेशन को स्टॉप किया जा सके एक प्री डिटरमाइंड पॉइंट पर. जब ग्रैनुलेशन को एक प्री डिटरमाइंड पॉइंट पर स्टॉप किया जाता है तो ये ग्रैनुलेशन एंड पॉइंट कंट्रोल कहलाता है. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. We will start a new topic of granulation, which is pharmaceutical granulation equipment and processes in the next lecture. If you have any questions from the current lecture, you can post it on HULMS. Thank you for patiently listening to this class. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.